ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਿਮਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸਰੂਪ ਐਸੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤਪਸ਼। ਉਹ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਜ਼ ਤਪਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਪਸ਼। ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਠੰਡ। ਠੰਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧ। तो ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਿਕ ਬਪਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲੇ। ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਛੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਲਾ ਦੇਗੀ। ਸਰੂਪ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਪ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰੂਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ, ਅਸਥੂਲ। ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੀਰਤ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਵਿਦਵਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲੋਂ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸਮਝ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੋਧ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੇ ਮਦ ਸਭੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ।
ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਰਦਬੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਇਹ ਅੱਖ, ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਤਲ ਹੈ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਜਿਤਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਤਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਤ ਹੈ ਸਭ में ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਕੇ ਚਾਨਣ ਸਭ में ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਨੀਸ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਫਰਾਇਡ ਜੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ। ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਲੋਭ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਮੋਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲੇਕਿਆਂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਫੋਕਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈਏ, ਸਿੱਪੀਆਂ ਸੰਖ ਹੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ तो कह देता है बस सिपियां ही ने, संख ही ने, और कुछ भी नहीं। पर कौन दसे जरा होर गहरे च जा, मोती भी है गए ने। तू गहराई दे च जा, तेनू सुच्चे मोती भी मिल सकते हैं। ये ठीक है कि दर्शन ते इसे दे ही होणगे जो थोड़ा बहुत नाम जपेगा ते अंतर्मुखी होवेगा। पहले पहले तो इन्हां दे ही दर्शन ने। इस वास्ते बहुती दुनिया घबराई भी है, कई लोग छोड़ भी देंदे ने, कहते ने अगे पिछे चंगे भले होंदे आ, मंत्र जपण लगदे आ, अंतर्मुखी होंदे आ, इसे दे ही दर्शन होंदे ने, होर ते कुछ नहीं। निराशा घेर दी है भी ते अंदर कुछ भी नहीं। पर ये सब कुछ ऊपर ऊपर है, जैसे सागर दे ऊपर ऊपर ही लहरां ने, हलचल है, गर्जन है, थल्ले गहराई दे ते शांति है। तो गहरे तल विच जाना पएगा। अज दा जिहड़ा मनीष है मनोविग्यानक, वो तो कहंदा इस तरह दी कोई आत्मा साडे देखण विच नहीं आई। पर जिस ढंग नाल उसने अंदर प्रवेश किया है वो ढंग को बहुत गहराई दा नहीं है। गहरे तल विच प्रवेश करन लईए परमात्मा दी याद, उसदे नाम दा रटन। और जैसे जैसे मनुख गहरा उतरदा है सच्चाई प्रगट होंदी है। और इस तरह के मनुख कह देंदे ने
सानू परमात्मा दे सुभाव दा पता चल गया, उहदी फितरत दा पता चल गया। और कहंदे ने संबंध किथे जुड़दे ने, दोस्ती किथे गूढ़ी आउंदी है, जिथे सुभाव मेल खा जाए। मैं धन गुरु अंगद देव जी महाराज की पंक्ति फिर थोड़े सामने रखते हैं। नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास। क्यों? इयाणे दा अपना सुभाव है, पर बुजुर्ग दा अपना स्वभाव है। संबंध जुड़ सकता है मोह दा, गूढ़ी दोस्ती नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती। दोस्ती गहरी किथे होंदी है? जब दोहां दे सुभाव एक हो जान। इसे नूं कहा है एक जोत दोए मूर्ति धन फिर गई है सोए। पति पत्नी ओही ने, दो दोस्त ओही ने जिथे सुभाव मेल खा गया, नित नहीं। नहीं सारी जिंदगी रहिंदे होया भी दूरी बनी रहेगी। ठीक है, कट्ठे रहे ने। और महाराज ते कहने धन फिर ए ना आखियन बैन इकट्ठे हुए, रहे कट्ठे, सारी जिंदगी कट्ठे रहे, एक घर दे च रहे, कट्ठी बतीत कीती जिंदगी। बच्चे होए, उन्हां दी कट्ठी पालना भी कीती, परवरिश भी कीती। फिर भी साहिब कहंदे ने दूरी बनी रही, सुभाव मेल नहीं खाता, सुभाव एक नहीं होया। समझौता ते कीता, रहना है, कट्ठे रहना है, समझौता, फिर भी एक मिकता नहीं हो सकी। सारी जिंदगी कई गुरुद्वारे आज आंदे रहिंदे ने, मजाले गुरु नाल एक मिकता होई होवे, साधना करते रहिंदे ने। प्रथम है गुरुद्वारे विच आके परमात्मा दे सुभाव नूं समझना। गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी। सूझ की लेनी है, समझ की लेनी है, सिर्फ उसका सुभाव समझना है, और कुछ भी नहीं। स्वरूप समझना है तो फिर साइंस दीयां किताबां पढ़न की लोड़ है। चंद्रमा की है, सूरज की है, धरती की है, सागर की है, ते सितारियां तो अगे की है, और कितना जहान है। ये तो बथेरियां कुछ विज्ञान दीयां किताबां मौजूद ने, ते विज्ञान धार्मिक ग्रंथां विच भी है, वो भी दसदे ने इस जगत की बनतर बारे, जगत की लीला बारे। लेकिन इतना कोई समझ भी जाए, ज्ञानी भी हो जाए, साइंटिस्ट भी हो जाए, कुछ भी नहीं होता। बेचैनी उस कोल आउंदी है। और दुनिया के अद्धे साइंटिस्ट, दार्शनिक, फिलासफर, चिंतक पागल होके मरे ने, आखिरी उम्र ते बेचैन हो गए, परेशान हो गए, अपनी खोज ते भी पछताए। कारण ये सारी सूझ समझ जिंदगी नूं बदलदी नहीं ते मनुख नूं परमात्मा दे नेड़े नहीं ले जांदी। नेड़ता किस तरह होंदी है? सुभाव दी प्रथम समझ आवे परमात्मा दी, ते फिर जो परमात्मा दा सुभाव है वही साडा बने। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, फैसला कर देता है। जैसा हरि है ऐसा ही हरि दा भगत चाहिए, इस तो थल्ले नहीं, इस तो थल्ले मिलना नहीं होवेगा। इस वास्ते कुछ गहरे मनुख ते इस तरह भी कहते ने, तू परमात्मा दा सुभाव अपनाने की कोशिश कर, परमात्मा की खोज ना कर, लब ना। अगर सुभाव तू उस तरह का बना ले तो परमात्मा तेरी खोज करेगा, पर जे तेरे कोल परमात्मा वाला सुभाव नहीं तो तू जिंदगी भर खोज करता रहेगा, पता नहीं कितने जन्म खोजेगा, लभदा रहे और लभदा ही रहेगा। अगर तेरे कोल परमात्मा वर्गा स्वभाव है फिर परमात्मा तलाश करेगा। भगत कबीर कहते ने, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। हुण मैं रब दे पिछे नहीं आ, रब मेरे पिछे। हुण मैं परमात्मा की तलाश नहीं करता,
हुण परमात्मा मेरी तलाश करता है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। एक किस तरह हो गए, स्वभाव दे तल ते एक हो गए। गुर कृपा जै नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। पत्थर दे च पत्थर लीन नहीं हो सकता, ठोस है। पानी दे च पानी लीन हो सकता है, रोशनी दे च रोशनी लीन हो सकती। इत्थे जितना चानना है और चानना कीता जा सकता है, दुगना कीता जा सकता है, तिगुना कीता जा सकता है। रोशनी दे च रोशनी समा सकती है, पानी दे च पानी मेल खा जाएगा, पत्थर दे च पत्थर मेल नहीं खाता। यह जी कह लई पत्थर ते पानी का भी मिलाप नहीं है, इकमिक नहीं आउणगे, कतई नहीं आउणगे। इस वास्ते ये तरल प्रमाण दिता है गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। मैं जिस दिन फ्राइड नूं पढ़ रहा सी ते लफ्ज़ बड़े मैनूं चुभे भी भारत दे सारे संत गलत कहंदे ने। अंदर कोई नाम है, जोत है, राम है। कहंदा नहीं, सिवाय काम तो मेरे पल्ले होर कुछ भी नहीं पिया। कोई निरंकार नहीं है, सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं है। कोई आनंद नहीं है, कोई खेड़ा नहीं है, कोई खुशी नहीं है, सिवाय तपश पछतावे ते क्रोध तो इलावा होर कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्रोध ते पछतावा इकट्ठा ही रहता है। क्रोध करना फिर पछताना, फिर क्रोध करना फिर पछताना, फिर क्रोध करना फिर पछताना, कहंदा यही कुछ है, इस तो इलावा होर कुछ भी नहीं। हंकार वश होके कर्म करना फिर पछताना, फिर हंकार वश होके कर्म करना फिर पछताना, वासना वश होके कर्म करना फिर पछताना, वासना वश होके कर्म करना फिर पछताना। फ्राइड कहंदा ये पछतावे ते पछतावे जरा कमजोर होए ते फिर किरत, इसे च जिंदगी लंघदी और यही मनुख नूं पागल कर देंदे ने। कर्म भी कीता फिर पछताए, कर्म भी कीता फिर पछताए। जो जो कर्म कियो लालच लग, तैं तैं आप बंधायो। तू ते रोज रोज बनीजदा जा रहे हैं। पातशाह दी बाणी, जो जो कर्म कियो लालच लग। तू ते जितने कर्म कीते सब लालच बस। इसनों इस तरह ले लो, जद मनुख दा लोभ ते मनुख दी कामना बाजार दे च नहीं पूरी होंदी, संसार दे च नहीं पूरी होंदी, ओही कामनावां मनुख मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च लेके आंदा है। गुस्ताखी माफ, संसार दे च नहीं पूरियां कर सकिया, असफल हो गया। बाजार दे च नहीं पूरियां हो सकियां, कामयाबी नहीं मिली, नहीं मिली सफलता इसनों संसार दे जो चाहता सी नहीं होया, जो कामनावां सन नहीं पूरियां हुईयां। तो इहदे कोल एक आखिरी सहारा रह गया, रब दा, परमात्मा दा। तो चलो बाजार दे ते कामना नहीं पूरी हुई, चलिए गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद। मैं अर्ज करा किधरे कोई कद मनुख किसे मंदिर किसे मस्जिद दे किसे दरगाह दे किसे हज ते किसे तीरथ ते कामना तो रहत होके जांदा होवे, वरना मनुख नूं लोभ ही लै जांदा है। लोभ बाजार दे च लै जांदा है, लोभ ही गुरुद्वारे लिआंदा है। कामनावां ही जो है मनुख नूं गुरुद्वारे लिआंदियां ने। हाँ, दुनिया च नास्तिक भी होए ने, बड़े बड़े परबल। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, पता है धार्मिक ज्ञानी की कहंदे ने, मनुख अपनी वासनावां दी पूर्ति लई परमात्मा नूं मनदा है और मनुख अपनी वासनावां दी पूर्ति लई परमात्मा नूं इनकार करदा है। तुसीं आखोगे ते बहेली है, ये ते बुझारत होई, किस तरह समझिए। मनुख अपनी कामनावां नूं पूरा करन लई
परमात्मा नूं मनदा है। मनुख अपनी कामनावां दी पूर्णता दे लई परमात्मा नूं इनकार करदा है। ताकतवर मनुख, शक्तिशाली मनुख अपनी कामनावां दी पूर्ति लई परमात्मा नूं इनकार कर देगा। अगर परमात्मा नूं सामने रखे तो वह अपनियां कामनावां पूरियां नहीं कर सकदा। 2 करोड़ बंदियां नूं मारिया है हिटलर ने, अगर रब नूं सामने रखदा ते मार सकदा सी। अपने तिन्ने ही भरा अपनी अखां दे सामने कतल कीते ने औरंगजेब ने। प्यो नूं जेल दे च पाया है, भैण दियां गुत्तां पकड़ के, केस पकड़ के, ध्रू के उसनूं जेल दे सुटिया है। अगर खुदा नूं सामने रखदा ते कर सकदा सी, इते नहीं हो सकदा सी। 2 करोड़ बंदियां नूं मार के चाइना दे च क्रांति आई। 2 करोड़ बंदियां नूं मार के रशिया दे च क्रांति लियांदी गई सी। ऐ हुणे 84 दे च 5000 सिखां दीयां लाशां सड़कां ते बिठा दित्तियां। मासूम बच्चियां दे गलां च भी टायर जलदे वे। अगर परमात्मा नूं सामने रखिया जाए हो सकदा है? ये कोई कर सकदा है? एक शक्तिशाली मनुख, एक ताकतवर मनुख अपनी कामनावां दी पूर्ति लई जिस वक्त उसने करनी है परमात्मा नूं इनकार करदा है, नहीं मनदा। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, परमात्मा नूं ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਉਤੇ दया है, परमात्मा नूं ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਉਤੇ इंसाफ है, परमात्मा नूं ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਉਤੇ समदृष्ट है, उते करण नहीं देगा। एक पासे ताकतवर मनुख कोई विरला ही होवे, जनक जैसा जो धार्मिक होवे, या महाराजा रणजीत सिंह जैसा, वरना नहीं आउंदा। मुश्किल है। सता मनुख नूं भ्रष्ट करके रख देंदी है। महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों नूं चिट्टे कपड़े पवाए सन, चिट्टियां टोपियां, लोकां नूं इंज लगदे सन जिवें आकाश तो उतर के देवते आए ने। देवते, बिल्कुल देवते लगदे सन। लोकी खुश होंदे सन उन्हां नूं वेख के। पर ताकत हथ दे च आ गई। जद कमजोर सन ते देवतियां दी तरह लगदे सन, बिल्कुल देवते। जद कमजोर सन देवते, पर ताकतवर हो गए थे चोर बन गए। जितना इन्हां ने लुटिया कोई डाकू नहीं लुट सकता, और सब कुछ सामने आया है। जद कमजोर सन ते बिल्कुल देवते लगदे सन, ताकतवर बिल्कुल दुराचारी ते भ्रष्ट हो गए, जालम हो गए। सियाणियां ने इस ढंग की खोज की थी। सरदार खुशवंत सिंह का एक लेख सी कि 200 साल दे दौरे हुकूमत दे अंग्रेजां ने इतनी गोली नहीं चलाई जितनी 40 साल दे गोली चल गई। 200 साल दे दौरे हुकूमत दे अंग्रेजां ने इतने फांसी ते नहीं चाड़े, नहीं बंदे मारे जिहड़े इन्हां ने 40 सालां च मार दिते। ताकत मनुख नूं भ्रष्ट कर देंदी है, सता मनुख नूं भ्रष्ट कर देंदी है। शायद इसे वास्ते भाई गुरदास ने जनक नूं सब तो वड्डा भगत कह दिता है। क्यों? भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। ये वड्डा शब्द होर भगतां नाल नहीं जोड़िया भाई गुरदास ने। क्यों? इसने कोई भी जिहड़ी जिम्मेवारी है उस तो इनकार नहीं किया। राजनैतिक जिम्मेवारी निभाई, परिवारिक जिम्मेवारी निभाई, और इसी तरीके नाल ये सारियां जिम्मेवारियां निभांदे आया उसने धार्मिक जिम्मेवारी निभाई। नहीं तो अक्सर ऐसे होए ने धार्मिक जिम्मेवारी निभाण की खातर लोगों ने कहा असी राजपाट एक पासे, ये जिम्मेवारी नहीं चुकते। भरतरी इनकारी हो गए, गोपी चंद इनकारी हो गया, महात्मा बुद्ध इनकारी हो गए कि राजनैतिक जिम्मेवारी मैं नहीं चुकता, ये परिवारिक जिम्मेवारी भी मैं नहीं चुकता, ये तो बोझ है। महावीर भी कहने लगे राजनैतिक जिम्मेवारी मैं नहीं चुकता। राजकुमार सी, राजे का लड़का सी, और मैं परिवारिक जिम्मेवारी भी नहीं चुकता। मैं तो इस फंस जावांगा, मैं तो सिर्फ धार्मिक जिम्मेवारी चुकनी है। 84 सिद्ध ने हिंदुस्तान का ते
कुछ इस्लामी इतिहास इन्हां नाल भरिया पिया। बहुत सारे सूफियां ने भी कह दिता सी जिम्मेवारी नहीं चुकते, ना समाजिक ना राजनीतिक। असीं ते सिर्फ मजहबी जिम्मेवारी चुकांगे, धार्मिक। लेकिन जनक सारियां जिम्मेवारियां नूं चुकदा है। वो परिवारक जिम्मेवारी भी निभांदा है बड़े सोहणे ढंग नाल, वो राजनीतिक जिम्मेवारी भी निभांदा है बड़े सोहणे ढंग नाल, और धार्मिक जिम्मेवारी तो ऐसी निभाई भाई गुरदास जैसे आलम नूं कहना पे बहुत वड्डा भगत है। सब कुछ होंदियां उदास, गुरुमुख माया विच उदासी। सब कुछ होंदियां होया उदास, जद कि कुछ भी ना होवे ते लोकी उदास नहीं होंदे। आशा बनाई रखते ने, कामना बनाई रखते ने, चलो अज नहीं ते कल, कल नहीं ते परसों। कामनावां दी पूर्ति होवेगी, कामनावां दी पूर्ति होवेगी। सिख जगत विच बहुत सारे राजे महाराजे होए ने, लेकिन जयंती ते बरसी सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह दी मनाई जाती, होर किसी दी भी नहीं। बथेरे होए ने, महाराजा जींद होया, महाराजा कपूरथला होया, महाराजा पटियाला होया, नाभा होया, पता नहीं कितने महाराजे होए ने, कोई थोड़े ने। लेकिन सिख जगत अपने धार्मिक अस्थानां विच गुरुद्वारियां बरसी मनांदा है महाराजा रणजीत सिंह दी, जयंती मनांदा है महाराजा रणजीत सिंह दी। क्यों? महाराजा होण करके नहीं, इसने धार्मिक जिम्मेवारी निभाई महाराजा होंदे होया, इसने धार्मिक जिम्मेवारी निभाई परिवारक होंदे होया, समाजिक होंदे होया। इन्हें परिवार त्यागया नहीं, राजनीति छोड़ी नहीं। इस वास्ते महान है। घर दे च धन वधदा गया, इस दे हिरदे दे च धर्म वधदा गया। बाहरों राज पाठ वधदा गया, अंदर धार्मिक रस वधदा गया। बाहरों ताकत वधदी गई, अंदरों निर्माणता वधदी गई। एक निक्का जिहा उदाहरण, हैदराबाद काफी लंबे समय तो मुस्लिम जागीर रही है नवाब दी, ते उन्हां दी स्टेट दे कुछ गदर होण लगा, लोकी बगावत करन लगे, ते कुछ डकैत भी ऐसे सन आले दुआले रोज ही डाके मारने, ते ये हैदराबाद दे नवाब तो काबू नहीं हो रहा सी। उन्हें अपना अर्दली भेजिया महाराजा रणजीत सिंह को भी मेरी मदद करो। कुछ ऐसे डकैत ते चोर ते जालम मनुख रोज उपद्र कर रहे ने, ते साडे काबू तो परे हो गई ये गल। तुसी घट तो घट 500 बंदे सानू इस तरह दे जरूर दिओ, जिस नाल मैं ये राजपाट चला सकां। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 भेजे, जिन्हां नूं अज असीं दक्कनी सिंह कहंदे हां। ये दक्कनी नहीं ने, पंजाब तो ही महाराजा रणजीत सिंह ने भेजे ने। हैदराबाद दे च, करनाटका दे च, महाराष्ट्र दे च जो लोग मौजूद ने, ये पंजाब चों ही गए सन। जब स्टेट दे शांति हो गई और नवाब ने सुकून महसूस किया, उसने नजराने वजों एक बड़ी कीमती चाननी जो दरबारां विच अक्सर राजे महाराजियां दे सिर दे उत्ते बन्नी जांदी, जिन्हों चंदोआ कहंदे ने, भेजी। एक दिन दीवाने खास दे च कोई खास तकरीब सी, ये चाननी एहलकारां ने बन दिती तोशेखाने चो लिया के। जैसे महाराजा साहब आए, तखत ते नहीं बैठे, दूरों ही खड़े रहे, देखते ने चाननी नूं। तो पुछया एहलकारां नूं, ये चाननी कित्थों आई, कद बनाई गई? चेते च नहीं रही। हजारां चाननियां तोशेखाने च पईयां होणियां ने। एहलकार कहण लगे, महाराजा साहब ये निजाम हैदराबाद ने आपनों नजराने वजों भेंट कीती सी, तोशेखाने च पई सी।
ਅੱਜ ਖਾਸ ਤਕਰੀਬ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਤਾਰੋ। तो जिन्हां एहलकारां ने तोशेखाने चों कढ़ के बन्नी सी, उन्हां नूं ते कंबड़ी छड़ गई भी कुछ गलत हो गया, कुछ भुल हो गई, उतारो। कुछ एहलकार उतारन दे च लग गए ते कुछ एक ने बेनती की थी, महाराजा साहब क्या ये चाननी आप दे शान दे छाया नहीं है? असी ते कीमती जान के, खूबसूरत जान के, सब तो चंगी जान के, इस दे च नीलम हीरे पन्ने सब जड़त ने, और ये सारी दी सारी सोने दी तारां नाल बनी हुई है। ये ते असीं कीमती जान के, खूबसूरत जान के बन्नी सी। क्या ये आप दी शान दे छाया नहीं है? महाराजा रणजीत सिंह कहंदे ने ये इतनी खूबसूरत है, ये इतनी कीमती है, ये मेरे सिर ते चंगी नहीं लगेगी, गुरु रामदास जी दे सीस ते चंगी लगेगी। भेज दी दरबार साहब। दास ने कई दफा इस दे दर्शन कीते, बदकिस्मती 84 च ये भी जल गई, नहीं रही। और मैं कई दफा इस चाननी नूं देखिया, इसने खुशी नाल, शरधा नाल उसे वक्त चाननी दरबार साहब भेजी। घर विच कोई कीमती चीज देखदा है महाराजा, इनू गुरु चेते आ जांदा है। अपने राज पाठ नूं देखदा है, इनू बाणी चेते आ जांदी है। अपनी शक्ति नूं वेखदा है, इसनू ईश्वर चेते आंदा है। इस वास्ते राजे महाराजे बथेरे होए ने, सिख जगत विच कौन पुछदा है किसे नूं? महाराजा रणजीत सिंह दी गल है। राजे महाराजे बहुत होए ने, लेकिन जनक जैसा नहीं। भगत वड़ा राजा जनक है, गुरुमुख माया विच उदासी। तो कुछ ऐसे ने जो कहंदे ने असीं धार्मिक जिम्मेवारी पूरी निभा नहीं सकांगे, इस वास्ते असीं परिवारक जिम्मेवारी छोड़ दें, राजनैतिक जिम्मेवारी छोड़ दें। महात्मा बुद्ध ने छोड़ देती, महावीर ने छोड़ देती, गोपी चंद ने छोड़ देती, ये सारियां जिम्मेवारियां भरतरी ने छोड़ दित्तियां, हजारां ने छोड़ियां। नहीं निभा सकते। धार्मिक जिम्मेवारी निभांदे होया असीं ये परिवारक जिम्मेवारी नहीं निभा सकते। ये राजनैतिक जिम्मेवारी साथों नहीं निभनी। गुरमत ने सोना दर्श दिता है, तू परिवार दे च है ते इस जिम्मेवारी नूं इस तरह निभा। मात पिता सुत बंधप भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। तू छोटा सी मासूम बच्चा सी ना, तो तेरे सहायक बने मां पिता। तो बच्चे लिए उपदेश है, तू सब तो पहले ईश्वर नूं अपने मां बाप विच देख। सब तो नेड़े ने, ये सब तो नेड़े ने। ते जिहड़े सब तो नेड़े ने उन्हां च नहीं दिखाई देंदा, ते बाकियां च की खाक दिखाई देगा? किस तरह दिखाई देगा? मां बाप तेरे बुढ़े हो गए ने, तू जवान हो गया, हुण तू इस तरह सेवा कर जिवें उन्हां ने तेरी सेवा कीती सी। मात पिता सुत बंधप भाई। मैं जद सुनदा, खास करके यूरोप के देशों ते इधर, कि बुढ़े मां बाप नूं ते बच्चे मिलन भी नहीं आउंदे, संबंध ही नहीं रहे कोई। धार्मिक जिम्मेवारी ते निभाणी नहीं सी, परिवारक जिम्मेवारी भी नहीं निभाई। ये भी मैं अर्ज कर दिया। इन्हां सारे संबंधां दा गुरबाणी जिक्र कर दिए। इन्हां संबंधां विच तो पहले परमात्मा दे, भरा दे, भैण दे, पत्नी दे, पति दे, बच्चियां दे, मां बाप दे। पहले तो गल परिवार तो शुरू होगी। ये सब संबंध उसने बनाए ने। तियां पूत सब हर के किए, सबना को संबंध कर दिए। संबंध ने इन्हां दे झलक देख। अगर बच्चियां दी सेवा करें
तो इंज जान के परमात्मा जान के, मां बाप की सेवा करें तो परमात्मा जान के। अगे कहंदा है, उमरे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। बड़ी लंबी उम्र में खुदा तो लेके आया, किन्ने? 4 दिन। उमरे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। अद्धी जिंदगी लंघ गई कामनावां करदियां, अद्धी जिंदगी लंघ गई उड़ीक करदियां, कामना अज पूरी होवेगी कल पूरी होवेगी, अज पूरी होवेगी कल पूरी होवेगी, कोई पूरी नहीं हुई, कोई पूरी नहीं हुई। मनुख दे मन की बड़ी गजब की तर्जमानी कर गए। अद्धी शक्ति, अद्धा समा, अद्धी जिंदगी लंघ गई कामनावां करदियां, अद्धी जिंदगी अद्धा समा बर्बाद होया उड़ीक करदियां, इच्छा अज पूरी होवेगी कल पूरी होवेगी, कामना अज पूरी होवेगी कल पूरी होवेगी। 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें। ये जो अरमान ने, ये जो हसरत ने, ये जो कामनावां ने, जो वासनावां ने, बहादुर शाह जफर कहंदा इन्हां कोई आखो जाओ मेरे हिरदे चों, मैं थानू छोड़िया छोड़ो मैनू। भरतरी भी तंग आके कहंदा मौत अज मात रमा अब तू भज आन किसे। ऐ वासना मैं तेनू छोड़िया छड़ मैनू तू, ऐ कामना मैं तेनू छोड़िया छोड़ मैनू तू, ऐ हंकार मैं ते सिंघासन छड़ आया। आखिर सिंघासन हंकार वास्ते चाहिए, मैं ते छड़ आया, पर कम वक्त तू मैनू नहीं छड़दा, मेरे पीछे ही है, दुखी है। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। इन्हां संसारियां वासनावां लई हुण मेरे दिल दे च थां नहीं है, जाओ निकलो रुखसत होवो। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए। कहंदे ने आखिरी दमा ते सी ते अंग्रेज कहण लगे कोई इच्छा। कहंदा हां, जिस मिट्टी च मैं जमया, जिस मिट्टी च मैं पलिया, मेरी कबर उत्थे ही बना दो दिल्ली दे विच। मिट्टी खिंचदी है, यह भी मैं अर्ज कर दिया। नवी जनरेशन थोड़े इस पासे दी जंपल वो गल वखरी है, बुजुर्गों के अंदर ते मिट्टी दी खिच आउंदी है। मैनू गल भुलदी नहीं, सन 66-67 दी ननकाना साहब एक माता कहने लगी गैनी जी कोई वसीला ऐसा बन जाए सरगोदे हो आईए। तो मैं कहा आपां ते ननकाना साहब की यात्रा ते आया ते बैठे ननकाना साहब हाँ ते तेनू सरगोदा याद आ रहे। कहते की करा, घर याद आउंदा है, वो गलियां याद आउंदियां जिथे मैं खेडी हां, याद आउंदियां। कोई सरगोदे जाण दा वसीला बन जाए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं सन, 65 की जंग हो हटी सी ते अजे जख्म बड़े हरे सन। सिर्फ ननकाना साहब की इजाजत सी, लाहौर की इजाजत भी नहीं सी भी ननकाने साहब तो ही वापस जाओ। ते वो बैठी ननकाना साहब ते याद करी जाए सरगोदे नो। मैं क्या मिट्टी दी खिच है और कुछ नहीं, मिट्टी खिंचदी है, मिट्टी दी पकड़ है। तो ये पकड़ बहादुर शाह जफर दे च भी, ये अंग्रेजां नूं कहंदा मेरी कबर दिल्ली दे च बना। अंग्रेज नहीं मने। कई दफा ऐसा होंदिया है, कईयां दी जिंदगी नहीं बोलती, कईयां दी मौत भी बोलन लग पैंदी है। चांदनी चौंक दे च लंघदे होया हर बशर दा सिर झुक जांदा है गुरुद्वारा सीसगंज दे अगों। कटे होया सीस भी झुकण लोकां नूं झुकाण ते मजबूर है। डुलिया होया खून और उत्थे दी शहादत मौत पता नहीं कितनियां जिंदगियां नूं रोज झुका रही है, सजदे करन ते मजबूर कर रही है। कईयां दी जिंदगी भी कुछ नहीं बोलती, कईयां दी मौत भी बहुत बोलती है। बड़ा
संदेशा देंदी है, बड़ा उपदेश देंदी है। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, अंग्रेज नहीं मने, कहने लगे नहीं फिर तेरी कब्र बोलेगी, नहीं असी उथे नहीं ले जाना। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। उस महल्ले विच उस मिट्टी च मेरी कब्र वास्ते भी थां नहीं, की ये जगत कुछ भी नहीं है, ये संसार की है। मेरी जिंदगी लई गल एक पासे, मेरी मौत लई भी जिस जमीन ते थां कोई नहीं। इस दुनिया नूं मैं अहमियत दें ते की दें, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर अर्ज करा, मनुख दियां कामनावां वाशनावां जद बाजार दे संसार दे नहीं पूरियां आउंदियां, ले आउंदा है अक्सर गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद दे, और जद सारे लोग कामनावां नूं ले आवन तो गुरुद्वारा गुस्ताखी माफ बाजार बन जाता है, मंदिर बाजार बन जाता है। मस्जिद हज ते गए हुए लोग बाजार बना के रह जाते हैं, कुछ भी नहीं रह जाता। क्योंकि कामनावां इत्थे ते प्रार्थना लो लैके आना सी, धनवाद नूं लैके आना सी, शुकराने नूं लैके आना सी। लख लख गुरु तेरा शुक्र तू मनुखा जन्म दिता, लख लख तेरा शुक्र तेरे कोलों रब दा कलाम सुनन नूं मिलिया, लख लख तेरा धनवाद तेरे कोल बैठण दा मौका मिलिया, लख लख तेरा धनवाद तेरी गल सुनन दा मौका मिलिया। इस तरह धनवाद नाल कोई एक दिन भी आ जाए तो मैं अर्ज करदा, वो करोड़ां दिन जो मनुख वासना नाल आया वो सारे कुर्बान किए जा सकते हैं, वो एक दिन दे च भी गल बन सकती है। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, एक कमजोर मनुख अपनी वासनावां दी पूर्ति लई परमात्मा नूं मनदा है, एक ताकतवर मनुख शक्तिशाली मनुख अपनी वासनावां दी पूर्ति लई परमात्मा नूं इनकार कर देंदा है, नहीं मनदे। क्यों? परमात्मा ते दया है, परमात्मा ते निर्वैर है, परमात्मा ते निर्भय है, उते समदृष्ट है, उते प्रेम है। उन्होंने सामने रखिए ते 2 करोड़ बंदे कतल किए जा सकते हैं, किसी नाल छल ते कपट किया जा सकता है। तो एक शक्तिशाली मनुख, एक ताकतवर मनुख ईश्वर नूं एक पासे करता है, कहते कम से कम हे परमात्मा तू तो एक पासे हो, तां ही वो कर सकता, वरना नहीं कर सकता। ये गल वखरी है कि परमात्मा एक पासे नहीं होएगा, वो तो व्यापक है, पर कम से कम उसने अपनी चेतना चों, अपनी बुद्ध चों, अपनी सोचनी तो, अपने व्यवहार तो एक पासे कर देता है, अपने स्वभाव तो एक पासे कर देता है। एक ताकतवर मनुख अपनी वासना की पूर्ति लई परमात्मा नूं मनदा है। एक ताकतवर मनुख, एक शक्तिशाली बंदा जो अपनियां कामनावां पूरियां करना चाहता है, ईश्वर खुदा बाधा है, एक पासे करता है। पर एक कमजोर मनुख अपनी वासनावां की पूर्ति लई परमात्मा नूं मनदा है, तो परमात्मा नूं इनकार करना, परमात्मा नूं मनना, ये परमात्मा की अहमियत करके नहीं, मनुख दी अपनियां कामनावां करके, और कुछ भी नहीं। और सब तो प्रबल कामना है मनुख दे अंदर जीवन दी। किन्ना क जीवना चाहता है? 100 साल है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस दे नाल जीवन की लालसा नहीं पूरी होती। महाराज कहते ने जे जुग चारे आर जा, एक एक युग दी लखां साल दी उम्र, तो घट 10 साल दी, 10 लाख साल दी उम्र होवे। महाराज कहते नहीं, इस नाल भी तृप्ति नहीं आती। जीवन की लालसा इत्थे भी खत्म नहीं होती। काश अगर कोई 10 लाख साल भी जी ले तो वासना इत्थे नहीं खत्म होती। नहीं तो सतगुरु नूं इह ना कहना पैना और 10 होनी होए, और 10 गुणा हो जाए, तो फिर तो 1 करोड़ साल, तो 1 करोड़ साल जी के भी क्या जीवन की लालसा पूरी होगी? कतई नहीं। मनुख जीवना ही चाहता है, जीवना ही चाहता है। दुखी है, संताप दे च है, रोगी है, शरीर की सारी शक्ति छीण हो गई है, जीवना ही चाहता है। जीवन की लालसा
मरदे दम तक पीछा कर दिए। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। तो मर के भी किथे मरे हैं, कबर दे उत्ते भी तेरा नाम लिखिया पिया, तेरी वल्दियत लिखी पई है, तेरा गुण लिखिया पिया, तेरा सुभाव लिखिया पिया, तेरी उपमा लिखी पई है। तो मर के भी थोड़ी मरे हैं, जीवन की लालसा तो मौजूद है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करना, साहिब कहते ने परबल लालसा है जीवन दी, और जीवन दी परबल लालसा है तो बड़ा परबल भय होवेगा मौत दा, क्योंकि जीवन दी लालसा है। फिर जीवन वास्ते सब कुछ चाहिए, फिर हंकार चाहिए, सिर्फ मैं लंबा जीवा ही ना, कम से कम सारा संसार मैनू जाने। हंकार अपने आप को प्रगट करना चाहता है, धर्म अपने आप को छुपाना चाहता है। बस इतनी गल है। अनक जतन कर हिरदे राखिया, रतन न छपे छपाया। भगत सोचता है मैं मिटा ते प्रभु प्रगट हो गए। हंकारी सताधारी वो कहता नहीं आप ही प्रगट होई है, रब मिटदा है ते मिटे। हंकारियां दी दुनिया च रब मिट जाता है, कम से कम उन्हां दी दुनिया ते नहीं आउंदा। इतनी मैं अर्ज करते हैं, नहीं आउंदा। हंकारियां निंदकां पिठ दे हमेशा रब दी पिठ ही आउंदी उन्हां दी तरफ। जितनी ताकत बढ़ती है, मनुष्य कितना भी शक्तिशाली हो जाए तो परमात्मा ते फिर भी वड्डा है। तो कुछ एक दा हंकार इतना वड्डा हो गया, वो रब नूं भी वड्डा मनण तो इनकारी हो गए। कह दिता रब की हुंदा सी, खुद रब है। हरनाकश ने कह दिता सी, मिस्र दे बादशाह नमरूद ने कह दिता सी, मैं ही खुदा हां, केड़ा खुदा हुंदा है, मैं खुद खुदा, मैं खुद ईश्वर हां। इस तरह के पता नहीं आज तक कितने मनुखा ने दावे किए न, खैर इस वक्त ये प्रकरण नहीं। जैसे जैसे मनुख की ताकत बढ़ती है, हंकार बढ़ता है। जीवन की लालसा बड़ी प्रबल, फिर जीवन वास्ते सब कुछ चाहिए। नवा खंडां विच जाणीए, नाल चले सब को। ये तां हो सकता जो है समर्था बहुत वधे तो लोभ भी चाहिए, हंकार भी चाहिए, फिर तो बड़ी प्रबल वासना भी चाहिए। और इस तरह दे मनुख की दुनिया च परमात्मा मिट जाता है, भाव दया मिट जाती है, संतोख मिट जाता है, समदृष्टि मिट जाती है, प्रेम मिट जाता है। जिथे किरणा नहीं पहुंच रही जिस कमरे विच, उस हिरदे च परमात्मा नहीं पहुंच रहा, इंज कह लीए हिरदे दी कोठड़ी च अंधेरा बने होया है। मन रे संसार अंध गहेरा, तो भय केवल मौत दा है। इतनी मैं अर्ज करा, क्योंकि जीवन की लालसा बड़ी प्रबल है। तो जीवन अगर इतना विस्तृत हो जाए, इतना वड्डा हो जाए, तो फिर लोभ भी चाहिए, हंकार भी चाहिए, बड़ी प्रबल वासना भी चाहिए। तो भय मौत दा है। महाराज कहते ने ईश्वर निर्भय निर्भव, ਉਹਦੇ ਚ भय नहीं है। ते मनुख भयभीत, तो भय ते निर्भव ये दोवें मेल नहीं खाते। या परमात्मा भयभीत होवे, या फिर मनुख निर्भव होवे। अगर परमात्मा भयभीत हो जाए तो फिर परमात्मा परमात्मा नहीं। अगर मनुख निर्भव हो जाए तो मनुख परमात्मा। निर्भव जपे सगल भव मिटे, निर्भव दा जाप सारे भय मिटा देंदा है। मनुख ईश्वर का रूप हो जाता है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। इस तरह के मनुख के अंदर जीवन की लालसा नहीं रहिंदी। इस तरह के मनुख के अंदर मरण का भय भी नहीं रहिंदा। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रतिपालई लेखे सास गिरास। वो जो परमात्मा है उहदे सुभाव विच भय नहीं है, निर्भव। फिर उसदे सुभाव विच वैर भी नहीं है, निर्वैर। वैर एक ऐसी आदत है, एक ऐसा रोग है,
अगर वैर हिरदे च है तो जिस नाल वैर है मनुख दा मन हर वक्त उसदे लिए बुरा मंगेगा। पहले बुरा मंगेगा, अगर मौका लग जाए तो बुरा करेगा, क्योंकि वैर है। इस वैर नूं पराई तात करके आखे, पराया साड़ा, पराई जलन, हर वक्त दूजे दा बुरा मनना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, जिस दे अंदर तात पराई होवे तिस दा कदे न होवे भला। महात्मा बुद्ध ते एक प्रश्न होया सी और मैनूं बहुत चंगा लग्या। जिस दिन मैं पढ़िया सी, आनंद ने प्रश्न कीता सी। उन्हां दा चचेरा भरा सी, सब तो ज्यादा सवाल यही करदा सी। एक ते सियाणा बड़ा सी ते दूसरा जो बाकी बौद्ध भिक्षुआं नूं आनंद मिल गया सी, इस कोल नहीं सी। भावें ना इसदा आनंद सी पर इस दे कोल आनंद नहीं सी। समझ बड़ी सी, तार्किक बड़ा सी। बहुती तर्क, बहुती सियाणप इसनूं भोला नहीं होण दिंदी सी। हर गल दे उत्ते विश्वास नहीं टिकण दिंदी सी। तो प्रश्न कीता महात्मा बुद्ध ते, दुनिया दे सब तो वड्डा आश्चर्य की है, हैरान कुन कर देने वाला की है, ऐसा की है? और एक छोटे रूप विच दस दो, ऐसा की है कि मैं हैरान हो जावां, आश्चर्य हो जावां। ऐसा आश्चर्य की है? तो आनंद नूं समझांदे होया महात्मा बुद्ध कहंदे ने, आनंद आश्चर्य इक्को ही है मेरी दृष्टि च। मनुख कर रहा है अपने नाल बुरा, लेकिन सोच रहा है मैं दूजे दा कर रहा। बस यही आश्चर्य है, और कुछ भी आश्चर्य नहीं है। यही हैरान कुन अवस्था है। मनुख कर रहा है बुरा, ये समझ के मैं दूजे दे नाल कर रहा। ते महात्मा बुद्ध कहंदे ने, कमाल दी गल अपने नाल कर रहा है। इस सारी कीती हुई बुराई पलट के वापस आ जाती है, उसदे कोल आवेगी। तेनू समझ कोई नहीं। इस तो वड्डा आश्चर्य मनुख दुखी है, इस वास्ते जगत नूं दुख दिते ने पलट के वापस आ गए ने। दिता लईए आपना, अण दिते किछ हथ ना आवे। जो कुछ तेरे कोल है पलट के वापस आया है। धरती ओही कुछ वापस देंदी है जो बीज बोए ने। मेरे दुखां लई मैं जिम्मेवार, कोई जिम्मेवार नहीं। ना समाज, ना हुकूमत, ना मां बाप, कोई भी नहीं। दुख दिता होया पलट के वापस आ जाता है। दिता लईए अपना, अण दिते किछ हथ ना आवे। और महात्मा बुद्ध ने पता है फिर आनंद नूं की किया, किसी नूं खुशी दिते बिना भी खुशी नहीं मिलती। ऐ आनंद, ये दूजा रहस भी मेरे कोल सुन ले। किसी नूं मुस्कुराहट दिते बिना भी मुस्कुराहट नहीं मिलती। जे कंडे बोए सन ते कंडे मिले ने, पर बिना बोए ते फुल भी नहीं मिलते। खुशियां दिते बिना किसनों खुशियां मिलियां ने, दुख दिते बिना किसनों दुख मिले ने। आनंद यही आश्चर्य है, यही जगत दे आश्चर्य है। पर वैर नाल भरिया होया मनुख हर वक्त दूजे दा बुरा सोचदा है, और मौका लग जाए तो बुरा करदा है। कि जिहड़ा ये सोची जाना है ना बुरा होवे, क्योंकि पराई तात रखण वाला इस तरह सोचदा है, और कई दफा तो इस तरह का भी सोचदा है, भावें मेरी इज्जत बने भावें ना बने पर दूसरे की बेइज्जती होनी चाहिए। मेरे सिर ते कोई पग बने भावें ना बने पर दूजे की लैनी चाहिए। मेरा घर बने भावें ना बने पर दूजे का उजड़ना ही चाहिए। अपना इस तरह सोच के भी दूसरे का बिगाड़ना।
वैर नाल भरिया होया हिरदा। जिस दे अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे न होवे भला, पर का बुरा न राखो जीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। ईरानी सूफी संत हाफिज बहुत कीमती गल करदा है, मैं लमकावा ना समाउण लगा। वो कहंदा है दरख्ते दोस्ती बा निशां के काम में दिल बबार आरद। दोस्ती दा बूटा ला, जे तू दिल दे सुकून चाहना है ते जे तू खुदा दा मिलाप चाहना है, खुदा दा मिलाप चाहना है तो तेरी दुनिया च उतना खुदा प्रगट होवेगा जितने नाल तेरी जो है दोस्ती है, और तेरी दुनिया तो उतना ही खुदा दूर होवेगा जितनी तेरी दुश्मनी है। दुश्मनी व्यापक भी आउंदी है, किसी मुल्क दी बहुत सारे मुल्कां नाल दुश्मनी, किसी कौम दी पूरी कौम नाल दुश्मनी, किसी परिवार दे एक पूरे परिवार नाल दुश्मनी, सारे जगत दे चलदा इस तरह। दरख्ते दोस्ती बा निशां के काम में दिल बबार आरद। दिल दा काम तू चाहना है, आनंद लेना चाहना है तो फिर सारियां नूं दोस्त बना। तो सारियां नूं दोस्त किवें बनाईए, एक गुरबाणी ने सानू ढंग दिता दसिया। एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बाद। एक नूं सज्जन बना ले, सागर नूं सज्जन बना ले, सारियां ही लहरां सज्जन तैनूं दिखाई देणगियां। सहारा ना देती अगर मौजे तूफान, डुबो ही दिया था हमें ना खुदा ने। ये शायर कहंदा है मैनू ते लहरां ने किनारे ते ला दिता, नहीं ते मला ने ते मैनू डोब ही देना सी। हद हो गई, लहरां ने किनारे ला दिता, ला देंदियां ने अगर सागर नाल प्यार है, लहरां भी किनारे ला देंदियां ने, और सागर नाल प्यार नहीं तो कई दफा एक लहर भी डोब के रख देंदी है। ये भी मैं अर्ज कर देता। एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब वाद। सारे ही सज्जन हो गए। हुण गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं एक दो दी गल नहीं, सबको मीत हम आपन की ना। ब्रह्मंड दे च जो कुछ भी है सब मेरे मित्र। हम सबना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। सारे मित्र तो मनुख मित्रां दा भला मंगदा है, तो सरबत दा भला। अगर कोई दुश्मन है तो फिर मनुख उसका बुरा मंगदा ही है। ते बुरा मंगिया होया बुराई वापस आ जाती है, बुरा दिता होया कीता होया पलट के वापस आ जाता है। ईश्वर विच वैर नहीं है, और जो ईश्वर का चिंतन करता है वह भी निर्वैर हो जाता है। हर एक का भला मंगण लग पैंदा है, किसी का भी जो है बुरा नहीं मंगता। परमात्मा के सुभाव विच भय नहीं है, परमात्मा के सुभाव विच वैर नहीं है, और परमात्मा के सुभाव विच समा नहीं है, वक्त नहीं है, काल नहीं है। इसकी व्याख्या मैं कल आप जी के सामने करांगा। समा हो गया, ना ज्यादा थानू बिठाइए। धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, सानू परमात्मा के सुभाव की समझ पै ते फिर परमात्मा का सुभाव अपना सकीए, ऐसी तौफीक मिले, ऐसी समर्था मिले। जिस दिन बंदे को परमात्मा का सुभाव आउंदा है, लोकी कह देंदे ने ते रब जैसा है, ये ते परमात्मा जैसा है, ये ते ईश्वर की झलक मिलती है। और जब परमात्मा तो ईश्वर तो बिल्कुल मुख्तलिफ मुखालिफ सुभाव होवे, लोकी ते कहंदे ने ते निरा ही शैतान है, निरा ही दुष्ट है, ते निरा ही पशु वर्ग है। और एक हकीकत है, बहुत बड़ी सच्चाई है, परमात्मा विच भय नहीं। तो भय तो अगर कोई रहत होना चाहता है तो निर्भव जपे सगल भव मिटे। रब नाल जुड़ी हुई आत्मा च कोई भय नहीं आता। और हिरदे विच वैर है तो इस मनुख का कतई कोई भला नहीं हो सकता, क्योंकि वैर नाल भरिया होया हिरदा बुरा मंगदा रहिंदा है, मंगदा रहिंदा है बुरा, ते दूजे लई बुरा मंगिया होया अपना बुरा हो जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं बस सब तो वड्डा आश्चर्य यही है, मनुख सोच रहा है मैं दूजे नाल बुरा कर रहा, पर कितना वड्डा आश्चर्य है अपने नाल कर रहा है, अपने नाल कर रहा है। ये तो पलट के वापस आएगा।
दिन 2 दिन लगणगे, वक्त लगेगा, वापस आ जाएगा। ਇਹ ਇਵੇਂ ਮੁਗਾਲਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਪਰ ਮੌਜਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਮੌਜਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਪਣੇ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਸੱਜਣ ਹੋਣਾ ਸਿਵਾਏ ਧੋਖਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਪਣੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੈਨੀ ਜੀ ਪਾਪੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਮੌਜਾਂ ਪੈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਪਣਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਦੁਸ਼ਟਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਇਤਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा यही सब तो वड्डा आश्चर्य है। एक मुल्क दूजे मुल्क नाल बुरा करदा है पर कौन दसे ये तो बुराई पलट के वापस आएगी। एक कौम दूजी कौम नाल बुरा कर दिए तो दूजी कौम जान के बुरा कर दिए, कौन दसे पलट के वापस आएगी। एक परिवार दूजे परिवार नाल बुरा करदा है पर कौन दसे ये दूजे नाल नहीं कर रहा, ये तो पलट के वापस आएगा। ये तो दिता लईए अपना अण दिते किछ हाथ ना आवे। बहुत लंबा चौड़ा खुलासा है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च, पर मैं इत्थे ही समाप्त करा। मूल मंत्र दे होर कुछ काफी वाक रहिंदे ने ते कल परसों ते इतवार दोपहर की हाजरी 3 हाजरियां आप दे चरनां च भरनियां ने। कोशिश करांगे इन्हां दे मूल मंत्र नूं मैं समाप्त कर सकां। मैं फिर अर्ज करा मूल मंत्र दी विचार समाप्त नहीं होवेगी। इंज कह दो मेरे जैसे ज्ञानी हजारां जन्म लैन ते होर हजारां कथा करन, मूल मंत्र अपनी थां ते है। अगम्मी विचार है, अगम्मी गल है। समय की समाप्ति हो जाती है, बंदे की अपनी सोचण शक्ति की समाप्ति हो जाती है, बंदे की अपनी कथन शक्ति की समाप्ति हो जाती है। तो कहना पैंदा कथा की समाप्ति, कथा जब रब मौजूद है तो उसकी कथा किथे मिटेगी, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। हाँ कथाकार मिट सकते हैं, कहण वाले मिट सकते हैं, लेकिन उसका कहना तो मौजूद रहेगा, वो तो जगत विच रहेगा। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। तो इस समय की बंदिश दे 3 हाजरियां जो होर भरनियां ने दास ने, उस दे बाकी विचारां आप जी दे सामने रखण दी निमाणी कोशिश करांगा। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।